Good evening, everyone. Thank you for joining us in time. A heartiest welcome to all of you. Today, we are going to have a power-packed discussion, a panel discussion on the research meet. The topic of the agenda today is to change in economic equilibrium. So we have with us Mr. Ashish Goyal, who is the Vice President, National Stock Exchange. He's a qualified chartered accountant, also a market veteran, and he's having as much as 25 years of experience in the market per se. So let me welcome Mr. Ashish first to give us the opening remarks, and then we'll proceed with respect to the panel discussion. Please, sir. Very good evening. We have been organizing these programs very sequentially with Ahmedabad Management Association, trying to bring across different facets of capital market. We have done programs on technicals, fundamentals. We have done panel discussion with our members who were gracious enough to come down here and answer most of your queries. I thank the entire eminent panelists, Ranisha, Ravi, Amrita and Hitesh for taking out their valuable time, and Hardik also to give consent to moderate the session. No matter how much you understand as far as financial markets are concerned, there is a scope for learning more. Indian opportunity, as I was discussing with the panelists, is unprecedented. We are at a verge of Indian economy where things will translate very fast. The more premise that we understand from the data points is the people who have invested for a longer term. So if I look at the figures, let me share some figures with you. The 1 year return of Nifty, okay, is 23.67%. Very enterprising. Okay. When you see at the 3 years return of Nifty, that is around 2 years return for the Nifty, it is around 22.39%. If you look at the 5 years return of Nifty, it is around 12.57%. And even if you look at the 10 years of Nifty returns, the CAGR is around 14%, which is quite incremental, never thought of. India is transforming to a very different level altogether. I was discussing with the panel how things change. Normally, for the sake of repetition, I am telling the same thing all over again. How many of you know how old is the UPI in India? कोई guesses आपके में से? कितना पुराना है हमारा UPI? 5 साल पुराना है ना? हम कह सकते हैं ये बात. आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ UPI के penetration का. UPI is almost 1.81 trillion in last 1 year, last 12 months for the number of transactions executed in an economy which is 3.25 trillion. Almost 53% of the transactions are digitalized. The amount of financialization that is happening in India, never thought of, never in the place. In fact, there was a news in the media today that US is launching its direct payment network today. They are doing it today, what we have done 6 years back. We are almost, this digitalization, this financialization has brought a lot of benefits in terms of transparency, in terms of cost of transaction, in terms of the way we do business. Things are very specific and very clear. The second thought that comes to my mind is, so we all must have heard about BRIC, okay? The Brazil, Russia, India, China, Korea, like that. So Brazil is for natural resources. Okay, Brazil is largely natural resources driven economy. When you talk of Russia, it's oil and gas. They are restricted to that. Okay, China, most of the companies are government owned, and even the companies, the digital companies, now government is literally handling them the way they wanted. We have a very diversified economy where financial markets have almost 25 to 30% if I talk about my Nifty. The IT is having the market thing, the automobile is having the market thing. We have an economy which runs through various sectors, and it is quite spread out. We are not the ones like the other emerging economies in India.
I shared one more thing with them regarding how things are panning out as far as our internal consumption is concerned. Things are quite incremental. For the sake of repetition, last time I said, if you are looking at a corpus of 1 crore in 15 years, the formula is very simple. That is 15, 15, 15. When I say 15, assuming that you make a CAGR of 15%, that is my first 15, okay? If you invest 15,000 for 15 years, 15,000, I said 3 15s, 15,000 for 15 years with an expectation of 15% return, your 15,000 will become a crore in 15 years. As simple as that. The only premise that all investors should understand is you should be investing for a longer term. We spoke about equity derivatives also. These are all challenging things. As an investor, you should refrain from entering into derivative contracts till the time you have an extensive knowledge and you can spare your time and dedication towards these products. These are essentially not for investors. As I said, things are evolving. We look forward to a very valued discussion with all our panelists. NSE and AMA will continue to organize these programs. When I speak in Gujarat, I am a North Indian, okay? मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं कोई भी अच्छी बात सुनता हूँ तो जेब में रख के छुपा लेता हूँ, किसी को नहीं बताता. मैं बदमाश आदमी हूँ. बट गुजरात में मैंने पिछले 6 साल में एक यूनिक बात देखी है. जब भी आप लोग सुनते हैं और आपने कोई अच्छी बात सुनी तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप मिनिमम 10 लोगों को बताते हैं. मुझे फ़ोन आता है कि सूरत से फ़ोन आता है कि मैं रमेश बोल रहा हूँ, आपने जिग्नेश भाई को ये अहमदाबाद में बताया था, मुझे भी समझना है. ऐसा मुझे रिपीटेडली फ़ोन आता है. तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे 60 लोग बैठे हैं और हमारे पैनलिस्ट 600 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. वी लुक फॉरवर्ड टू मोर पार्टिसिपेशंस. वी कैन हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स. जस्ट स्प्रेड द गुड वर्ड about the programs that are being organized, and we will come up with different verticals, different programs for all of you. Thank you very much. Thank you, Ashish ji, for the welcome remark. Let me welcome the panelists over here. As I said, they are the experts in their field. But just to highlight what their accomplishments are, so on my extreme right and on your extreme left, we have Dr. Renisha Chainani. She has a very rich experience of over 17 years in fundamental, technical and sentimental intermarket analysis in the bullion and commodity exchange. She has done her doctorate as well on the topic called detriments of gold prices under the different scenarios in August 2022 from Gujarat University, and she is the head research at Augmont Enterprises as well. So I welcome her with a memento and a bouquet. On her left is Mr. Ravi Doria. He too is having a substantial experience with respect to the field of research of financial assets, which includes all equity, forex, commodities and everything. So he's presently working as Director Research and Fund Manager at Kuvarji Growth. So everybody know how big is Kuvarji, and being at a position which is as senior as his is a very accomplishment. He has conducted more than 700 seminars and webinars on spreading the awareness of the financial market, and he too is a stalwart in this particular field. So let me welcome him as well. Thank you. On to his left and my right, Miss Amrita Mashar. She is having a 14-year experience in quantitative trading and research for commodity as well as equity market. She started as a top researcher at a top broking firm, but eventually started her own path, being employed to self,
and now she is working for proprietary trading desk and manages fund with the use of index derivative. And she too is highly experienced in the field of the equity markets and the other markets. So I too welcome her as well. And lastly, to my right is Mr. Hitesh Somani. He has over 17 years of experience in the area of stock market and technical analysis. He has won many prestigious awards as well in this particular field. He has also proved to be a good mentor by educating over 40,000 students across the world. He is a good influencer and student to love to learn more and get more insights. And he is a founder, managing director and the founder of the firm called Aapka Investments. So welcome to Hitesh as well. Now, good part of this is that we are done with the introduction round and the main crux lies over here. So let me just settle down for a moment. The topic for today is actually very interesting, right? It says we are here as a research meet, change in the economic equilibrium. But before we start and dwell into this particular topic per se, let me just give you a quick disclaimer that the fact that whatever we will be discussing it over here, right, is for an educational purpose only. Please don't treat it as a research tip. Please don't make any investment decisions purely on the basis of whatever we will be discussing over here, right? कल कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार नहीं हैं, right? So basically this is just for the purpose that we are highly regulated on an overall basis. So we need to maintain certain decorum. So as we talk about the most important question with respect to what is the change in the economic equilibrium which we are talking about. Right. So let me hand it over to Dr. Renisa to discuss about what is her perspective with respect to the fact that what exactly is the economic equilibrium and how she believes is going to be the future. Thank you, Mr. Hardik, and thanks NSE for inviting me. So today's topic is change in economic equilibrium. What does that mean? It means how is the demand supply of a particular thing changing? And equilibrium means whether it is at par or not, whether we are at a state where demand and supply is equal, right? So I have expertise in precious metals, so I'll talk about precious metals, how is the demand and supply, whether it is at equilibrium or not, why prices are at record high, right? So to start with gold, we know that in India, gold is not a jewelry or just a flaunting thing. No, it is a necessity for all of us. And it is a kind of a safe haven asset, inflation hedge, a currency, a financial asset, you name it, a asset which is used for against, hedging against uncertain times. So gold is used by all of us. And which are the things that are influencing the prices? Let me talk about that. So I think there are main 5 things that influence the prices, that determine the prices of gold. First is demand. Demand is like retail demand, physical demand, investment demand. We have central banks, we have ETFs. So first is demand. Second is currency. And the dollar is the main thing that is gold is traded on. So dollar index is the second main determinant that determines the prices. Third is liquidity in other asset classes, like what is happening to equity, bond market, currency market, commodity markets influences the gold market, whether money is coming in, it is sucked out from the system, so that influences the prices, right? Fourth is US economic indicators. There are main 3 indicators that influence the prices. One is what is the forecast of interest rate that would come in US, inflation, what will happen, right? So this interest rate, treasury yields, interest rate and inflation and growth rate. So these 3 indicators are the main ones. And fifth thing is supply. How is supply panning out for gold?
So looking at the current pace, 3,000 tons of gold is mined every year. So with this pace, by 2050, we would be out of gold. There would be no new extraction that would be coming in, because discoveries are very limited and it takes many, many years for a new mine to extract gold and mine gold from it. So supply is also very much less, or it is coming down gradually. So demand is more, supply is less. This is about gold. Let me talk about silver. Silver market is also in deficit, supply deficit. We have seen from last 3 years, it is into deficit. 2022 was a record deficit year, and even 2023 would be a second highest record deficit. Supply is a constraint for silver because silver is not directly mined from the mines. It is a byproduct. 75% of the silver comes as a byproduct from copper, zinc, lead mines, and 25% only comes from the main silver mine. And as silver is industrial metal, 60% of the silver is used in industries and 40% in jewelry and other things. So it takes a lot of things to understand silver. Now, I said we have a supply deficit in silver also, and now what is the thing that determines the prices for silver going ahead? There would be 3 things. One is 5G technology, other is electric vehicles, because every electric vehicle uses 25 to 50 grams of silver. And third thing is solar energy, which is greatly used now. Now we have capacity of 1 terabytes in entire world, and in next 2-3 years this is going to double. So we have a lot of silver usage coming in. So that is the reason silver prices are rising, and it will continue to rise. So we have supply deficit in gold and silver both. There is no equilibrium in this market. That's why prices are rising, and they are at record highs. So this is just a basic introduction of the topic which I am talking about. Thank you. Thank you, Renisha, for your wonderful comments. Let me pose the same question to Ravi as well, that what exactly his views are in terms of the topic here. First of all, thanks to Ahmedabad Management Association as well as NSC for inviting me as a panel member, and thanks Hardik for mentoring us because I think जब experts ज़्यादा होते हैं तो उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है. तो बेसिकली वो टाइम काफ़ी मीन्स कि हमारे जैसे बहुत मीडिया में हम चाहते हैं तो थोड़ा हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते. तो बेसिकली एक चेंज इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जो मेरा मानना है पर्टिकुलर मैं ज़्यादातर कमोडिटीज़ एज वेल एज इक्विटीज़ एंड फॉरेक्स का कॉम्बो देखता हूँ, क्योंकि आई एम मीन्स की हेड ऑफ एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, एंड मेरे अंडर में सारे तीनों बैंक है, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस जगह आप काम कर रहे हो आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए. तो मैं 3 जगह में काम कर रहा हूँ तो 3 में एक्सपर्ट होना ज़रूरी था. तो बेसिकली मैं सब देखता हूँ. तो बेसिक इस इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है, पर्टिकुलर वो चेंज क्या हो रहा है. तो मीन्स कि अभी तक देखें ना तो मैक्रोस में काफ़ी ऐसा था कि ग्लोबली जब हम बेस मेटल्स के लिए देखें या हम इकोनॉमी के लिए देखें तो इंडिया के मैक्रोस का इतना वेट नहीं था, इंडियन पॉलिसी का इतना वेट नहीं था. बट अगर आप लास्ट आरबीआई की पॉलिसी देखें तो हमारे गवर्नर को भी आप देखें तो ये साल का बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला है. वो क्यों मिला? पर्टिकुलर ग्लोबली जब कोविड के टाइम के बाद मार्केट को समझने आए क्या है, मीन्स कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, वो हेल्थ क्राइसिस भी था, घर के बाहर कोई नहीं निकल पा रहे थे. इस हिसाब से क्या था कि यूएस हैज़ इन्फ्यूज सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, क्योंकि उसको वही साल में इलेक्शन था. तो उसको था कि अगर इकोनॉमी में कुछ ये हेल्थ क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम आया तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर रनिंग गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो पाती. तो क्या हुआ, यूएस फेड रिजर्व एंड यूएस गवर्नमेंट ने कंबाइंडली $8 ट्रिलियन इन्फ्यूज कर दिया यूएस इकोनॉमी. अभी यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड लीडिंग इकोनॉमी एज वेल एज फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है उसके डिसीजन है वो बाद में जो सारे सेंट्रल बैंकर्स है वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं. तो वर्ल्ड में ये होप सब जगह चली, वो बैंक ऑफ जापान हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी हो, सब ने फॉलो किया. बट एक ही ऐसी सेंट्रल बैंक थी जिन्होंने ये फॉलो नहीं किया, वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमने हेलीकॉप्टर मनी इन्फ्यूज़ नहीं किया.
हेलीकॉप्टर मनी क्या है कि जब जापान में ये वर्ड वहाँ से डिराइव हुआ था कि उसको इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो जाता है स्पेंडिंग का, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी कम है, कंजर्वेटिव पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, तो उसको हर बार प्रॉब्लम आता है कि इकोनॉमी रुक जाती है। तो वो क्या करते हैं कि हर अकाउंट में पैसे इन्फ्यूज़ करते हैं, फ्री के पैसे कि आप कंज्यूम करो, इस हिसाब से इकोनॉमी, क्योंकि बैंक जापान के पास लेस पॉपुलेशन है, स्टिल दे आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसके पास पैसा बहुत है। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे पैसा इन्फ्यूज़ कर देते। वो सिस्टम कोविड के बाद सब सेंट्रल बैंक हो या गवर्नमेंट हो, उन्होंने सिस्टम किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी दी। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो मनी दिया, वो पैकेज दिया इन टर्म्स ऑफ लोन कि आपको ये रिपे करना है, वापस देना है। इस हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत थी उसका ही इतना ही लोन लिया। तो क्या था, सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ नहीं हुई, और सडनली ये इंसिडेंट के बाद जब हमारा इन्फ्लेशन पीक हुआ, उसके बाद तुरंत ही इन्फ्लेशन ने नीचे आना चालू किया। एंड बड़ी बैंक में, बड़ी सेंट्रल बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट थी जिन्होंने रेट पुश किया, मीन्स कि उन्होंने रेट बढ़ाना बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन पे था। वेजिटेबल्स के न्यूज़ चल रहे हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इन्फ्लेशन नीचे आया वो सीधा नहीं आया, गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज की। तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबली हमारी जो इमेज थी वो सडनली वो पॉजिटिव इमेज हुई। सेकंड, फार्मा, हेल्थ केयर, जो हमारी फैसिलिटी थी, वर्ल्ड में हेल्थ केयर क्राइसिस थे वो, जब कोविड आया लोग को रोड पे सुला के वो लोग ट्रीटमेंट देते थे। फार्मा मीन्स कि किसी के पास दवाई नहीं थी, वो इंडिया से जा रही थी, तो वो भी एक हमारे लिए गेम चेंजर हुआ। थर्ड, चाइना प्लस वन थियरी एंड यूरोप प्लस वन थियरी। चाइना प्लस वन थियरी क्या है कि जिस हिसाब से काफ़ी सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, मेटल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, उसका बड़ा जो डिपेंडेंस लोग का चाइना के ऊपर था वो शिफ्ट होके इंडिया के ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि सबको लगा कि एक जगह से कुछ इनकम अगर, या एक जगह से अगर प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत हो तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो वो समझाया। साथ में क्या हुआ कि यूरोप प्लस वन, जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ, यूरोप वॉज फेसिंग अ सीवियर एनर्जी क्राइसिस, नेचुरल गैस के प्राइसेस 10 to 20 टाइम्स बढ़े वहाँ पे, और इमीडिएट बढ़े। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की कैपिटल गुड्स कंपनी है, जो वहाँ की बड़ी मशीनरी कंपनी है, उसको उसके सारे के सब्सिडरी कंपनी इंडिया में, लाइक जो भी आप नाम ले लो, सबकी एक बड़ी कंपनी लिस्टेड भी है इंडिया में, तो वो कंपनी में उन्होंने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट किया। साथ में एप्पल जैसी कंपनी, जिसको इंडिया का कंज्यूमर मार्केट चाहिए था, मीन्स कितने बिलियन ऑफ पीपल में अगर उसको सेल करना है, गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड कि अगर आपको इंडिया में बेचना है तो यू हैव टू प्रोड्यूस इट इन इंडिया। तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, साथ में काफ़ी मीन्स के कंपोनेंट्स है, वो सारे यहाँ बनने लगे। तो इस हिसाब से चेंज हो रहा है, मीन्स कि इंडिया में ये चेंज ओवरनाइट नहीं आया। मीन्स कि वो जीएसटी में हमने कुछ फेस किया, डिमोनेटाइजेशन में हम लाइन में लगे, हमने फेस किया, मेंटल स्ट्रेस फेस किया। तो जब ट्रांजिशन होता है, कोई भी चेंज होता है ना, चेंज में जब चेंज होता है तब सबके लिए नेगेटिव है, बट इसका एडवांटेज अब कब या अब आ रहा है। मीन्स कि इन 2019 IMF ने स्टेट किया था कि इंडिया विल बी अ ब्राइट स्पॉट इन ग्लोबल इकोनॉमी। वो ब्राइट स्पॉट क्या था? वो ये है ब्राइट स्पॉट। अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का इतना है, FDI आ रहा है, FIs आ रहा है, सबको इंडिया चाहिए, कंपनीज प्लांट्स लगा रहे। तो अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेटा का भी वेट बेस मेटल्स पे होता है, अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेटा का वेट क्रूड के प्राइसेस पे होता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें चेंज हो रही है कि धीरे धीरे हम ग्लोबली जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से चेंज है। मेरा टॉपिक भी बेस मेटल था, इक्विटीज़ था, इकोनॉमी था, तो मैंने ट्राई किया कि उसमें भी हम कवर करें। और जो ग्लोबली लास्ट एक करेंसी रहेगा वो मैं नहीं छोड़ूंगा। करेंसी में ग्लोबली देखें तो सारे बड़ी इकोनॉमी से जो इमर्जिंग बास्केट में आते, सबकी करेंसी में अच्छा डेप्रिसिएशन था, बट इंडिया का इतना ज़्यादा करेंसी का डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम वी हैव क्रॉस $600 बिलियन, हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमने क्रॉस किया। तो बेसिकली काफ़ी ऐसे एडवांटेज वाले फैक्टर से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ये मेरे हिसाब से चेंज इन इक्विलिब्रियम है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Thank you, Ravi, for your wonderful insights on the macroeconomics. I pose the same question again to Ms. Amrita for her views on the change in the economic equilibrium. Thank you so much. Good evening, all of you. Thank you, NSC, EMA, for giving me opportunity to be a panelist. I also want to thank Renisha, because when I joined the industry, she was the only inspiration for me,
because I was working in a commodity and right now I'm sitting with her, so it's a very extreme grateful moment. Now, as both of them has explained about the economic equilibrium. Now, what is it and how the things has changed in India? But I want to say that if the things are changing, then how you need to deal with that. So market efficiency is like demand and supply is there. Market अभी all time high पे है, लेकिन कितने लोगों ने पैसा बनाया? Can the raise hand? Exponential पैसा बनाया, वैसे लोग कम होंगे, right? थोड़ा बहुत बनाया, लेकिन बड़ा नहीं बनाया. Now people are waiting from the last 5 days that कब market नीचे आएगा. So in that risk and return, that consolidation should be there. So where you are investing your money, which type of company you are investing money, are you investing in large cap, are you investing in penny stock? So that is something also matter when the economy at a very good scale and it is expected to move higher side, right, in the next coming years. The third thing I want to elaborate is market timing and de-equilibrium. That is something very much important. Like 2-3 साल से लोग बोल रहे थे मार्केट 20,000 जाएगा, लेकिन 20,000 तक खड़े कितने लोग रहे? बहुत कम, right? And even the SEBI report is also suggesting that still people are losing money. So when we talk about the economic equilibrium, तो वहाँ पे fundamental will tell you that which company is good, but technical will tell you that when to enter into the market and when to exit. So timing is something very much important into the market when you are dealing with the capital market or commodity market. So this is something, it is a skill. So demand economics is like a learning. So when you are coming into the investment, you need to learn a lot. You need to invest your time and energy into it. Then only you can like get the advantage of this economical equilibrium. Now, in this particular era, you need to deal with the diversification of your portfolio because market at its peak. So you cannot put all your investment into the one basket. You should have the conservative basket, you should have the SIP, you should have the balance fund, you should also have the like direct investment into the market. So that way the diversification is also very much important for the coming days. Which is something which can rebalance your portfolio. So any short-term swing cannot affect your ROI. So, and the fifth one, which is something very much important for all the investors who are dealing into the market directly, that you should be very much attentive with the market information, market knowledge, like upgrading the skill. Because investing is a skill. People come into the market for the passion. They come for the like, they are coming into the market for the 330 trade, but they are investing, they become investor. मतलब बनते आते हैं ट्रेडर होके लेकिन जाते हैं इन्वेस्टर होके और इन्वेस्टर आपको हो जैसे आज मैंने इन्वेस्ट किया है if the price is coming down then I will become trader, right? So that is something very much important when market it at peak. तो यहाँ से फॉल का रहता है एक fear हमेशा रहता है. So we need to balance that portion like by understanding the risk. आपको जितना return चाहिए उतना ही आप रिस्क लीजिए. डोंट गो लाइक आपने मतलब कोई कर रहा है तो आप कर लीजिए. दैट इज समथिंग शुड नॉट बी देयर फॉर द कमिंग ईयर्स. क्योंकि क्या है कि जैसे पहले 10,000 निफ्टी था तो 10,000 का वॉलेटिलिटी कम था. अभी 20,000 का निफ्टी अगर 22,000 हो जाएगा तो वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज. सो इन्वेस्टर नीड टू डील विद द वॉलेटिलिटी ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक कन्वे that how to deal with the coming scenario. Okay, so thank you so much. Thank you Amrita for the wonderful insight. Ek market research says that majority of the people who are trading in the stock markets don't earn even FD equivalent interest as well. So majority of them, so 80% of them loses money, and she has given a very clear road map with respect to what are the next steps with respect to how to go forward, how to be cautious, what are the activities which you are supposed to take care while investing. So over to you Hitesh with respect to your comments on the topic here. Yes, please. Okay, thank you Hardik, and I would like to thank AMA and NSE for inviting me for this event. So जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, the topic today is change in economic equilibrium. अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है.
सब जनों को यही है कि सर मार्केट टूटेगा कब, टूटेगा कब। तो टूटेगा तब भी आप लेते हुए रुकेंगे कि नहीं और कितना टूटेगा, बढ़ रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट सबसे पहली बात यह है इस इक्विलिब्रियम की कि इज इट अ जस्टिफाइड नंबर। 2020 में निफ्टी मेड अ लो ऑफ 7,500 एंड टुडे इट इज़ रनिंग एट 20,000 लेवल्स, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया है। हमें से कितने लोगों की इनकम 2.5 टाइम्स हो गई है? यस और नो? इंडेक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारी इकोनॉमी को। इंडेक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारी ग्रोथ स्टाइल को। बट क्या लगता है आप लोगों की कि आप सबके इनकम में 2.5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? चलो इनकम छोड़ो, हमारी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो यहाँ आप गलत हैं। अपने 10 इयर्स बैक जाके बात करते हैं। 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम 10 साल बाद 1 से 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ऐसे ही ले लेंगे? आज मोस्टली पीपल आर बाइंग आईफोन्स, यस और नो? हम 10 साल पहले 1500, 3000, 5000 का फ़ोन लेते थे, उसे भी बहुत अच्छा मानते थे, यस और नो? आज से 10 साल पहले क्या हमने सोचा था कि हमें 20 लाख की गाड़ी लेने के लिए 6 महीने वेट करना पड़ेगा? आज से 10 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि यार हमारे हर रूम में एसी होगा? पहले एसी लगाना भी बड़ा था, आज हर रूम में एसी होना भी कम बात है। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स, ये सब चेंज इन लाइफस्टाइल नहीं है तो क्या है? हम लोगों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ चेंज इन वेजिटेबल एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता था। पेट्रोल का भाव 1 रुपये बढ़ता था, लोग रोड पे आके बिल्कुल प्रदर्शन करते थे, ये था वो था। आज और पेट्रोल तो छोड़ो, टमाटर का भाव 40 से 41 रुपये हो जाता था तो लोग डिस्टर्ब हो जाते थे कि कैसे चलेगी हमारी लाइफस्टाइल। आज 160 रुपये किलो है। आप में से किसी को टाइम है कि 160 है तो चलो उसके लिए धरना दे दें? Nobody is even bothered. This is what is called change in economy. यही है इस change in economic equilibrium. इंडिया जिसकी इकोनॉमी पहले $1 ट्रिलियन पे भी सर्वाइव करने में आगे पीछे होती थी, वी आर इनटू $3.2 ट्रिलियन। और सबसे बड़ी बात, द ग्रोथ इज येट टू कम। ग्रोथ तो अब रियल में आएगी जब मार्केट 20,000 लेवल को ब्रेक करेगा। जब निफ्टी 20,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तब आप देखिएगा मार्केट किस लेवल पे ग्रो करता है, हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे ग्रो करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी विल बी $10 ट्रिलियन। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अभी तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट नीचे आएगा फिर मैं ले लूँगा, नीचे आएगा तब आपको लगेगा सर और कितना नीचे आएगा। सो दिस इज़ द गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। सो ना आपको ग्रीड में एंटर करना है ना फियर के साथ पीछे रहना है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you, Hitesh, for laying the ground over here. I would just like to add a couple of points to what you said. Right, generally investment में ये पढ़ाया जाता है that the first crore for an individual is the most difficult. Exactly the same thing what he told from an economic perspective is that the first trillion was the most difficult, and then it is going to be a boom, which has now taken us to 3.2 trillions in terms of our economy. So I'll come to your point with respect to the fact that the next 10 years is going to be an India's year. So we'll discuss that as well. But let me just pose a question over here to Renisa first. With respect to the fact that why are central banks around the world are buying so much of gold? क्या हो गया ऐसा तो? Are they not buying US dollars or the Chinese currency? Why are they after gold? Yes, Hardik, we have seen that ki central banks around the world are moving towards de-dollarization. ये नया वर्ड काफ़ी लोगों ने सुना होगा आजकल। तो पहले अगर आप देखें 20 साल पहले तो सेंट्रल बैंक के जो रिज़र्व्स थे उसमें 73% डॉलर के रिज़र्व्स हुआ करते थे। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में, बॉन्ड्स में वो लोग अपना पैसा डालते थे, और गोल्ड का बहुत ही कम रेशो हुआ करता था, 3 से 4%। अभी अगर आप देखेंगे वो 73% का घट के 58% हो चुका है। सो ऑलमोस्ट 25% कम हो चुका है डॉलर का जो रेशो था रिज़र्व्स में। तो सेंट्रल बैंक्स क्यों डॉलर से डाइवर्सिफाई हो रही है, वाई दे आर डूइंग डी डॉलराइजेशन एंड मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड?
क्योंकि द फर्स्ट रीज़न इज़ जिस तरह से यूएस में मनी सप्लाई आप देखें कंटिन्यूसली घट रहा है। अब उनकी बैलेंस शीट्स देखें वो लगातार बढ़ रही है। जैसे रवि ने भी बताया कि आप अगर 10 साल पहले देखेंगे तो उनकी बैलेंस शीट लेस देन 1 ट्रिलियन थी, अभी बढ़ के 8 ट्रिलियन के ऊपर हो चुकी है। मनी सप्लाई ग्रोथ जो है वो भी लगातार गिर रहा है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं। देखो तो एक साल में आप देखेंगे फेडरल रिजर्व जो है अपना इंटरेस्ट रेट 0 से लेके 5% कर लेगा, हर बार 50 पॉइंट बढ़ा लेगा। नेक्स्ट ईयर अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो 5% का वापस 0% हो जाएगा। सो पीपल एंड सेंट्रल बैंक्स हैव लॉस्ट फेथ इन डॉलर, एंड दैट इज़ वाई वी हैव सीन दैट डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो एक टाइम पे थोड़े साल पहले 120-125 हुआ करती थी, वो अभी घट के इट इज़ लेस देन 100 नाउ। सो जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और सेंट्रल बैंक्स को अपने लिए कुछ डाइवर्सिफाई एक टूल चाहिए, अपनी जो भी उनके फॉरेक्स एसेट्स है उनको बैलेंस करना है। तो और कोई करेंसी नहीं है उनके पास जो इक्वल टू डॉलर है, एंड गोल्ड इज़ द ओनली वन जो अपना वो लगातार अपनी होल्डिंग्स गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। वी हैव सीन कंटिन्यूस बाइंग विद बोथ द हैंड्स दे आर बाइंग। सारी की सारी सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड। जो पहले इनके पास सिर्फ 5% जितना रिजर्व होता था, अभी 15 से 20% एवरेज है रिजर्व्स जो गोल्ड का है। तो इफ़ सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग सो मच गोल्ड, वाई नॉट यू? Everybody should be putting at least some portion of their portfolio in gold, that I'll discuss later. So one quick question here. What is your recommendation, at least with respect to the percentage weightage which we can put? Yeah. The So- percentage weightage which you can put with respect to gold, ideally in terms of portfolio. So if you have asked me this question in before 2008, I would say 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए गोल्ड। अगर आपने ये क्वेश्चन 2021 से पहले पूछा होता, कोविड से पहले, तो आई वुड से 10 से 15% रखना चाहिए। बट आफ्टर कोविड द सिनारियो हैज़ चेंज। इतनी अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं। अभी मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ पुट एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड। दिस इज़ द मिनिमम थिंग, gold and silver both. 15 to 25 or 20% is minimum, because gold has given 12% CAGR returns in last 20 years. 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो एवरेज रिटर्न जो है वो 12% है रुपी टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 9% है, पर रुपी टर्म्स में तो 12% हमको हर साल एवरेज मिला है। तो एटलीस्ट आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो, एंड इफ़ योर पोर्टफोलियो इज हेज्ड विद गोल्ड यू गेट बेटर रिटर्न्स। थोड़ा सा भय का माहौल है, ऐसा लग रहा है दैट जनरली व्हेन पीपल वांट टू पुट इट इनटू द गोल्ड, देयर इज अ फीलिंग के डिप्रेशन आ रहा है, इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग गुड, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई यू वुड डाइवर्सिफाई इन अ गोल्ड इन अ यूजुअल सिनेरियो। आज की सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आज नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, ई गोल्ड मिल रहा है, राइट? सो देयर कैन बी टू इंटरप्रिटेशंस, इक्विटीज आर नॉट गोइंग टू ग्रो possibly, or the diversification is because of the fact that the other industries, other economies are not going to grow. But fair point, I'll come to that as well. Ravi, I just wanted to understand with you with respect to crude, because crude is the topic which affects every one of us, right? Crude is petrol, diesel, ये सारे भाव हमको रोज impact करते हैं, हमारे साथ रोज associated हैं, knowingly, unknowingly. So there was a point in time where Chinese economy was on a lockdown kind of a situation. Even after COVID, they were not performing well. They were in as good as not performing per se. Then there was a war which has happened between Russia and Ukraine, which is still going on. And the foreign economies have stopped buying it from Russia. So practically the balance in terms of the demand and supply was significantly large. But despite that, the crude price is almost stable, right? तो बहुत सारे news आ रहे हैं with respect to the oil producing countries and all. But there are two things which I would want to understand from you very clearly. What is the outlook on crude per se on a totality basis, and the outlook for India as well? Now considering the fact that Russia has decreased the discount which they would want to give it to India, and they don't want to accept the payment in India ruble terms as well. So India के लिए क्या है? Right? पहले global क्या है? India के लिए क्या है? From a crude perspective, if you can highlight, please. डेफिनेटली क्रूड के प्राइजेस में मंच के जैसे आगे इधर से बात कर रहे थे कि पहले पेट्रोल डीजल के प्राइजेस में कुछ
ऊपर या नीचे होता था तो लोग रोड पे आते थे, बट अभी 96.12 समथिंग वो फिक्स हो चुका है। मीन्स कि वो शायद कोविड के बाद एक आध साल के बाद जो प्राइस फिक्स हुआ था, एक साल में वही प्राइस है। तो इस हिसाब से क्रूड का जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट माइंडसेट पे, मीन्स कि हमारे लोग को माइंडसेट में नहीं आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस काफ़ी महीनों से चेंज नहीं हुए, वो सेम टू सेम प्राइसेस पे पेट्रोल पंप में मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये एक माइंड पे इम्पैक्ट नहीं था। पहले क्या था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तुरंत आता था। मीन्स कि मैंने देखा है मेरी लाइफ में, बेसिक अगर वो 50 पैसा की 1 रुपये बढ़ रहा है तो पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाते, लोग 5 रुपया 10 रुपया खर्च करके 6 रुपये का डिस्काउंट लेने जाते थे। वो पता नहीं चलता पेट्रोल पंप पे जाना, घर पे आना, वो भी कुछ, उसमें भी कुछ फ्यूल का कॉस्ट लगता है, बट वो सबको पता है, वो सब लाइन लगा के खड़े रहते। और तब तो इंडिया के पास टाइम बहुत था, मीन्स के अभी इंडिया के पास टाइम नहीं है, अभी इंडिया के पास पैसे है, वेल्थ है। अभी हम थोड़ा बहुत, जैसे हमारी बात हो रही थी, काफ़ी लोग अभी मीन्स के मिडल, लोअर मिडल से अपर मिडल या मिडिल क्लास में आ रहे, तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, हमारे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, एंड पर्टिकुलर लोग का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से अभी क्रूड के प्राइसेस का हमारे माइंडसेट से अभी थोड़ा कोरिलेशन नहीं है। बट यस, ग्लोबली क्या है कि कोविड का टाइम है ना, उन्होंने काफ़ी जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज किया। वो क्या था कि एट अ टाइम ऑफ कोविड लॉकडाउन आपने देखा एक बार क्रूड माइनस में भी गया था, मीन्स कि आप क्रूड पे ले जाओ और डॉलर पे ले जाओ, ऐसा एक सिनारियो था। एक दिन वो माइनस में बंद हुआ था, और इंडियन जो कॉमोडिटी ट्रेडर्स है उन्होंने काफ़ी पैसा गंवाया था, किसी ने कमाया भी था, जिसने सेल किया था उसने, क्योंकि वो टाइम कोविड का था, तब 5 बजे एक्सचेंज बंद हो जाता था। तो बाद में जैसे 5 बजे एक्सचेंज बंद हुआ, रात को यूएस में वो नेगेटिव में गया, और हमारा सेटलमेंट यूएस के प्राइस से होता है, तो हमारा भी यहाँ क्रूड नेगेटिव बंद हुआ था। तो बेसिक वहाँ से जो रिकवरी आई और वो जो 120 130 पे आई, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रशिया का। पहले क्या था, ओपेक प्लस मेंबर ऐसा बोलते हैं। ओपेक मीन्स की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन और एक्सपोर्टिंग नेशंस है, उसके अलावा उसके कई मेंबर्स है जो ओपेक के मेंबर्स नहीं है, बट वो क्रूड के बड़े प्रोड्यूसर्स है, लाइक यूएसए, रशिया है। वो डायरेक्टली ओपेक में अंदर नहीं है, बट वो लोग ओपेक प्लस में रशिया है। तो रशिया ने ओपेक प्लस के कहने पे या उसके साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, मीन्स कि यूक्रेन का प्लान तब से चल रहा था, तो बेसिक इसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना इमेज क्रिएट करने के लिए खुद का प्रोडक्शन 50% तक कट कर दिया। इससे क्या हुआ, ग्लोबली सप्लाई में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि यूएस वॉज कंजर्वेटिव। यूएस को ऐसा लगा कि अगर ये क्रूड मेरे कंट्री से बाहर गया तो मैं पहले मेरा जो कोटा है वो फुलफिल करता हूँ। तो यूएस ने काफ़ी अपना कोटा फुलफिल किया, तब तक उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया। अभी फंसा कौन ये मैटर में, ये मैटर में सबसे बड़ा फंसने वाला जोन था वो यूरोजोन। यूरोजोन में सीवियरली एनर्जी क्राइसिस हिट हुए, क्योंकि क्रूड की सप्लाई जब विंटर होती है तब क्रूड की सप्लाई में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यूरोप में, यूएस में, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो सप्लाई पॉसिबल है। हालांकि नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन वो करते हैं ट्रांसमिट, बट यूक्रेन रशिया के वॉर के हिसाब से वो भी यूरोजोन में प्रॉब्लम था। काफ़ी टाइम वो मीन्स कि ब्लास्ट हो जाए, अभी इतने सालों तक हमने सुना नहीं कि कभी भी उसकी पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, बट ये वॉर के बाद 2-3 बार ऐसा हुआ, तो सप्लाई डिस्टर्बेंस हुए। रशिया ने अभी तक अपना प्रोडक्शन प्री कोविड लेवल पे वो नहीं पहुंचे, रशिया अभी भी अपने सप्लाई कट करके ही बैठा है। इसका फ़ायदा किसको मिला, ओपेक प्लस को, जिसको लॉस भी हुआ था जब कोविड में प्राइसेस नीचे आए थे। उसके बाद जैसे ही $130 प्राइसेस पहुंचे, रशिया ने डिस्काउंट पे, मीन्स के $62 पे उन्होंने जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है जिसको रिस्क लेना था, जिसको यूएस से डर नहीं था, जिसको यूरो के सैंक्शन से डर नहीं था, वो लोग को उन्होंने क्रूड देना चालू किया। तो जो प्राइजेस 130-140 चल रहे थे स्पॉट में या सऊदी अरेबिया प्रीमियम में बेच रहा था, वो प्राइजेस उन्होंने तुरंत ही 65 में बेचना चालू किया। अब वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट कंज्यूमर है, यूएस, इंडिया, चाइना, तो उसमें से एक कंज्यूमर है जिसका प्रोडक्शन अपने हिसाब से यूएस कर लेता है, बट इंडिया चाइना इंपोर्टर है, उन्होंने तुरंत ही अपना सप्लाई चेन है ना वो रशिया की ओर शिफ्ट कर दिया, और एक बड़ी क्वांटिटी में क्रूड रशिया से इंडिया एंड चाइना की ओर आने लगा। तब क्या था, चाइना को पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि वो वॉर पे गया था और अभी भी है वॉर में, तो इससे वो सब एक्सेप्ट करता था डॉलर के अलावा। तो उन्होंने पहले यूरो में पेमेंट लिया, बाद में हमने युआन में पेमेंट किया,
बाद में हमने दिराम में पेमेंट किया, तो वो सब करेंसी एक्सेप्ट कर रहा था। अभी थोड़ा बहुत उसको मीन्स के पता है कि अभी क्रूड की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने अपना कंडीशंस देना चालू किया, बट स्टिल दे हैव रिड्यूस प्रोडक्शन मीन्स के 2.5 मिलियन बैरल पर डे। अभी क्या हो रहा है, जब भी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब भी प्राइजेस में कुछ करेक्शन आता है, रशिया या ओपेक प्लस से कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है कि प्राइजेस फिर से पंप अप हो जाता है। बट फॉर इंडिया एज ए इकोनॉमी $70 से $90 हमारे लिए सबसे बेस्ट केस सिनारियो है। क्यों 50 नहीं होना चाहिए, क्यों 40 नहीं होना चाहिए? उसका रीज़न है कि अगर 60 के नीचे प्राइजेस आए तो कई सारे ओपेक प्लस नेशन है वो ब्रेक इवन के नीचे आ जाएंगे, वो सीवियरली अपना प्रोडक्शन कट करेंगे, जिसका डायरेक्टली हमारे पे इम्पेक्ट आएगा। सेकंड, वो हमारे कंज्यूमर है, वो हमारे से एग्री कमोडिटीज ले रहे हैं, वो हमारे से मेटल्स ले रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे लिए ये 70 to 90 ये एक न्यू नॉर्मल क्रूड प्राइजेस है और वो शायद यही रेंज में रहेंगे। तो बेसिक एज ए इंडिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, हमारा एक स्टोरेज लेवल इज आवर लिमिटेशन। अगर आपको सबको पता ना हो तो एक बता दूं कि अगर ये सारे जो एक्सपोर्टर्स है अगर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते और इंडिया को स्टोरेज 100% इंडिया स्टोरेज पे है, तो भी हमारे टोटल कंजम्पशन का 51 डेज का ही हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है। 51 डेज के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इतना मीन्स के हम कट लाइन पे चल रहे हैं, हमने कभी भी ये सोचा नहीं। और थोड़ा बहुत हमने ओपेक प्लस के साथ या चाबार पोर्ट में भी हमने किया था, बट वहाँ पे यूएस के सैंक्शन लग गए, ईरान में लग गए, चाबार में भी अभी पार्शियल सैंक्शन है, तो इस हिसाब से हमारा कैपेसिटी नहीं है। चाइना के पास वो 3.5 से 4 महीने का कैपेसिटी है और यूएस के पास तो कैपेसिटी ही कैपेसिटी है। तो बेसिकली हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अभी इस हिसाब से इंडिया में क्रूड एंड नेचुरल गैस के प्राइजेस डिलीवरेबल प्राइजेस नहीं, मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको डिलीवरी नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया का बाय लॉ है कि जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी वही क्रूड एंड नेचुरल गैस में डील कर पाएगी फिजिकली। तो बेसिक इंडिया में ये सिनारियो है। बट यस, मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ रूपी आगे जाके कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम होगा। अगर प्राइजेस 90 ऊपर 100 ऊपर चालू हो गए, इंडिया विल अगेन रैंप अप देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। ये तो हमें अभी फियर है कि रशिया आगे जाके क्या करेगा। रशिया को फियर है कि अगर मैं डॉलर में या किसी और करेंसी में एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरे पे इंटरनेशनल बैन लग गए तो मेरी करेंसी या मेरा वेल्थ जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि इट विल हर्ट इकोनॉमिक, एंड मुझे 100 के ऊपर प्राइजेस भी नहीं दिख रहे, वो सस्टेनेबल होने चाहिए। और नेक्स्ट ईयर 2 इलेक्शन है, जो क्रूड के सबसे 2 बड़े कंज्यूमर है, एक इंडिया और एक यूएस। तो इंडिया एंड यूएस के इलेक्शन के टाइम आप वो अभी हिस्ट्री निकाल दे तो 90 के ऊपर कभी भी क्रूड स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी, दोनों के पब्लिक माइंडसेट एंड दोनों के सेंटीमेंट पे क्रूड के प्राइजेस काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्रूड के प्राइजेस से हमने नहीं डरना है, ना तो गवर्नमेंट को डरना चाहिए। बट यस, स्टोरेज लेवल डेफिनेटली गवर्नमेंट को जैसे एग्री में ज़रूरत है, ऐसे ही क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में हमें डेफिनेटली हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। Thank you, Ravi, for the detailed insight on the crude prices. इतना तो पता है कि 70 to 90 would now be a consistent level where we will not have a problem. But your comment with respect to the fact कि पहले obviously जब 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया जो भी बढ़ता था, and then we were queuing up, certainly then we realized कि भाई अब तो बढ़ता ही नहीं है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। बट अब हमने ये सोच लिया कि हम इससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, राइट? सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि भाई लाइन में लगो, हम पैसा बनाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी आर स्पीकिंग टू अ गुजराती ऑडियंस प्रिडोमिनेंटली, राइट, जो स्टॉक मार्केट में और बाकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा तो बना ही लेगी। सो मूविंग आवर डिस्कशन ऑल टुगेदर फ्रॉम commodities to equities, right? So let me ask Amrita to understand from her कि market is at all time high. Yesterday it closed at an all time high as well, right? So if let us say I want to invest into a potential investment or any particular sector, so to say, right, what are the opportunities I should have it in this peak market condition? क्योंकि market is at peak, करूँ नहीं करूँ और करूँ तो कैसे करूँ, right? So over to you, Amrita, just to help the audience understand how exactly we should move forward. मतलब क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, मार्केट में एक्चुअली 3 तरीके से इन्वेस्ट होता है। द वन इज़ फंडामेंटल। यहाँ पे फंडामेंटल से इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग हैं? कैन द रेज हैंड्स? ओके, 5 7। टेक्निकल, मतलब कुछ प्राइस देखते हैं, आजकल काफ़ी यंगस्टर टेक्निकल देखते हैं, राइट? प्राइस एक्शन, चार्ट्स,
इंडिकेटर, स्ट्रैटेजीज, ओके ओके, धीरे धीरे करके सबको लग रहा है चलो मेरा कुछ बोलेंगे वैसा आएगा. एंड द थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी न्यूज़ में, CNBC पे आ गया, या मेरे फ्रेंड ने किया, या मुझे ऐसा लगता है. वो लगते वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? लगते वाले, अरे हाथ ऊपर कर लो. ओनली 1%. हाँ, वॉलेटिलिटी. और काफ़ी ऐसा है, मतलब लगता मतलब वैसा, मैं उसको इस तरह से बताना चाहती हूँ दैट आई डोंट हैव एनी सिस्टमेटिक वे और आई डोंट हैव अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो अगर समझिए कि यहाँ पे ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सो व्हाट दे नीड टू डू कि आप आपका जो प्रॉफिट है उसको कहीं ना कहीं बुक करते जाइए, क्योंकि मार्केट काफ़ी एक्सपांड हो चुका है. यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी 100-150 पॉइंट का भी मूवमेंट आएगा तो इन्वेस्टर विल बी डिसअपॉइंटेड कि मेरा मतलब कहीं ना कहीं लॉस हो गया. सो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ अ मैथड यू शुड यूज. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है देन एटलीस्ट यूज कि 1 वीक का लो ब्रेक करे तब तक मैं मेरा इन्वेस्टमेंट एग्जिट करूंगा, या 2 दिन का लो ब्रेक करे. दिस इज अ वेरी सिंपल, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है. लाइक 2 days लो, 1 week लो, अगर वो ब्रेक करेगा तो ये ऑल टाइम हाई से मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है. दैट इज समथिंग अ साइकोलॉजिकल, देयर इज नथिंग टेक्निकल. ठीक है. अनदर थिंग कि जो लोग यहाँ पे नए जिनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ऐसे कितने लोग हैं जहाँ पे करना है, मतलब ऑल टाइम हाई पे करना है, ओके, एटलीस्ट 2-3 लोगों ने हाथ उठाया. तो आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो लेकिन उतने एक्सपांड नहीं हुए जितना मार्केट ने एक्सपांशन दिया है. स्टार्ट SIP, जैसे म्यूचुअल फंड की SIP होती है, स्टॉक की SIP करिए एंड ओवर द इयर्स यू कैन होल्ड ऑन. आप हर एक लेवल पे एक्यूमुलेट करिए. सो ऑन द करंट लेवल आई कैन सजेस्ट 2 things: trailing your profit, and the second thing, if you are new to the market, start making like small amount into the investment on the regular basis. Or the third thing I want to tell you, most of the people don't have that proper asset class. Asset class is the biggest problem. मतलब आज निफ्टी 50 के स्टॉक को ट्रेड कर लिया, कल निफ्टी 500 के स्टॉक में से किसी को भी ले लिया, फिर कभी किसी ने बोला अरे ऑप्शंस में तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मैंने किया है तू भी कर ले. सो दैट वे यू शुड नॉट जंप फ्रॉम वन असेट क्लास टू अनदर असेट क्लास. दिस इज अ समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप आपका फोलियो बना रहे हो, अगर आपको 5 साल के लिए करना है, देन चूज अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जिसकी फंडामेंटल अच्छे हैं, या निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ काफ़ी यंग इन्वेस्टर्स है, either you are using moving averages, RSI, super trend, whatever. Be a discipline. कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी अगर आप उसको 90 days तक फॉलो करोगे तो कभी भी कोई स्ट्रैटेजी आपको लॉस नहीं देती है. ठीक है. बट द ओनली वे वी आर फेलिंग दैट वी आर नॉट डिसिप्लिन, वी आर नॉट पेशेंस, एंड वी आर लाइक वी थिंक लाइक इट इज़ अ पैशन टू इन्वेस्ट इन टू द मार्केट. लेकिन क्या होता है, जहाँ पे पैशन होता है, पैशन तो एक्साइटमेंट है ना, वहाँ पे पैसा नहीं बनता है. जिसका स्क्रीन टाइम जितना कम होता है उसका पैसा उतना ज़्यादा बनता है. सो दिस इज एज अ फंड मैनेजर आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब नंबर के अलावा भी कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू आर स्टार्टिंग, बी वेरी एक्यूरेट विथ योर इन्वेस्टमेंट प्लान. The way you are doing your monthly budgeting for income and expense, only the way make your investment boring and follow the levels rather than just like मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने किया. ठीक है. So this is something I can suggest to all of them कि इस तरह का कुछ स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए और एक प्लान बनाइए कि किस तरह से आप कौन से फोलियो में आप करेंगे. एंड द वे इवन लाइक रेनिशा सेड कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए. देर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करिए. वी ऑल्सो हैव निफ्टी 20, बैंक 20. ठीक है. तो उसमें भी आप कंजर्वेटिव आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल स्टे इन टू द मार्केट, यू विल लर्न द डिसिप्लिन, एंड देन आफ्टर वंस यू आर लाइक थ्रू विद इट, then you can directly invest money into the market. So there are various type of products and we should take the advantage of that. Right? So thank you so much. Thank you, Amrita, for guiding us with respect to the investment and to the new investors as well. But
अभी हम हमेशा मार्केट इज ऑल टाइम हाई, what we are talking about in general, right, or the theme of it is that there is a good potential from an India perspective is what is the underlying theme which I can make out over here. But the important question है, खरीदना कब है वो सब बता रहे हैं, बेचना कब है is the question which I would want to understand from you, Hitesh, that what is your prediction, let us say, with respect to the Nifty up till Diwali or the Muhurat, and कब बेचना है या खड़े रहना है? और भी आई अंडरस्टैंड यू आर बुलिश एब्सोल्युटली विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म, बट नियर टर्म फ्यूचर में क्या करना चाहिए इज व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. सो द क्वेश्चन इज कि अब हमें क्या करना चाहिए. देखो, दिवाली तक या कल तक या परसों तक मुझे ऐसा लगता है यही हमारी सबसे बड़ी गलत सोच है इस मार्केट के लिए. नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट्स, गो विद द फ्लो. मार्केट जिधर जा रहा है आपको उस साइड होना पड़ेगा, तो ही आप स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाएंगे. नो डाउट. अगर टेक्निकल टर्म्स की बात की जाए तो 20,000 लेवल्स पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है. एक तो 20,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे टेक्निकल टर्म्स में. जो टेक्निकल समझते हैं उन्हें पता होगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है. मैं यहाँ कोई लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ 2 के पीछे 4 जीरो लगे हुए हैं. अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मैंने क्या कहा, हम मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देखेंगे. बिकॉज 20,000 ब्रेक होने के बाद आप लोगों को क्या लगता है जो मार्केट नहीं जानते हैं किस लेवल तक जा सकता है मार्केट? यस एवरीवन, एक रैंडम फिगर आपको क्या लगता है? 22, 21, 22 और कोई 25. देखिए, हमने सीधा 20 के बाद 21, 22, 25 की बात शुरू की. किसी ने ये कहा कि सर 20,000 100 जाएगी निफ्टी, 20,000, क्योंकि पहले तो उसे 100 जाना पड़ेगा. यस और नो? बट उसका एक जो बड़ा बैरियर था 10,000 पॉइंट का, वो खुल गया. हमें बात करें कि 5 साल में कहाँ जाएगी, आप सीधा कहोगे 30,000 भी आ सकती है, 40,000 भी आ सकती है. आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि सर 20,200 आ सकती है, बिकॉज द बैरियर इज नाउ ओपन. तो वो जो 20,000 का मेजर रेजिस्टेंस है वो आज भी टेस्ट हुआ. कल उससे सिर्फ 9 रुपये दूर थी निफ्टी और आज 250 पॉइंट का करेक्शन आ गया. दूसरी चीज, टेक्निकली हम बात करें तो एक ओवरबॉट जोन भी होता है कि बहुत बढ़ गया अब बेचें. मैं सब बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ यही सिखाता हूँ कि हम ह्यूमंस ने, ये मार्केट पूरा इमोशंस पे चलता है. गोल्ड अभी 60,000 चल रहा है, 50,000 आएगा, आप लोग क्या करेंगे, बाय या सेल? आप सबका आंसर चाहिए मुझे. बाय बाय बाय. देखो, सबका आंसर बाय. ना आप टेक्निकल समझते हो ना चार्ट समझते हो, बट आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि 50 आ गया, बहुत सस्ता हो गया, हमें लेना है. वही 50 पे आपने गोल्ड लिया और 70,000 आ गया, आप क्या करेंगे? सबका आंसर होगा सेल 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 सेल. कोई चार्ट नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बट हम इमोशंस के साथ मार्केट में आते हैं और इमोशंस के साथ में हमें लगता है 50,000 पे सस्ता हो गया, 70,000 पे महंगा हो गया. ऐसे ही हमें लगता है मार्केट 20,000 पे महंगा हो गया. हुआ या नहीं हुआ वो टाइम बताएगा. सो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो टेक्निकल टर्म्स कहते हैं कि जब तक, जैसे अभी अमृता ने भी बताया, हमें कोई लेवल्स पता होने चाहिए कि दिस इज़ द मेजर सपोर्ट एरिया. ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें एग्जिट नहीं होना है. वो होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे. थोड़ा हमारा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. बट अगर यहाँ से बढ़ गया तो आपका जो अपॉर्चुनिटी बेनिफिट है वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. राइट द विनर्स एंड सेल द लूजर्स. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड आई फॉलो दिस ओनली एंड दिस इज़ व्हाट आई teach also. Thank you. Thank you, Hitesh. That was wonderful. But एक चीज़ है जो मेरे को मैंने कहीं देखी थी, is the fact that you will never be able to predict the market because market is unpredictable. But Rakesh Jhunjhunwala in one of the funny comments said once कि market is like a wife, right? You will never be able to understand the mood of your wife, and exactly similarly you will never be able to understand the wife as well or the market as well. So what you are supposed to do is go with the flow. Howsoever it goes, ऊपर जा रहा है ऊपर जान दो, नीचे जा रहा है उस हिसाब से करो, राइट? सो बेसिकली nobody, as you rightly said, is going to predict the market per se. But just talking about the quantitative easing policy with respect to the Fed, कि बहुत पैसा liquidity और वो सब पंप इन कर दिया with the assumption के बहुत कोविड का इम्पैक्ट आएगा. And then on an overall basis market में बहुत ज़्यादा liquidity हो गई. The US inflation, the inflation at the Europe
is at a significantly high level, and now they are struggling with the problem कि अब इस पैसे का करे क्या, और इतना पंप कर दिया उसका कैसे exactly how it is going to impact, and now the reversal trend is there, and that's what we are seeing it in the US as well. So Renisha, just a question over here to understand what is the impact of the quantitative easing policy which the Fed is now going after, and what is the impact on India in a short to medium term perspective? सो दिस क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, बट दिस टाइम द मार्क वॉज वेरी हाई एंड वी सॉ दैट इसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया जैसे आपने बताया, एंड सिर्फ यूएस में नहीं, यूके, यूरोजोन, सब जगह हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं 40 इयर्स हाई पर थे. 1970s 80s में जो इन्फ्लेशन एक हाई लेवल गया था वो लेवल्स पे आ चुके थे. तब उस टाइम पे 12% 15% का इन्फ्लेशन था यूएस में. तो अभी भी इसी तरह हमने देखा कि पिछले साल 9% का इन्फ्लेशन देखा गया. इस वजह से उन्होंने यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना स्टार्ट किया. तो एक ये साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं, एंड उसके बाद जब इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट्स रुक जाते हैं और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स देख के अगर वो भी कूल डाउन हो रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट कट होता है. और पिछले आप 50 सालों की अगर हिस्ट्री देखें तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स इस तरह बढ़ते हैं, जब जैसे अभी बढ़े हैं, हर बार ऐसा देखा गया है, आउट ऑफ पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तो 9 बार ऐसा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार ऐसे वन वे बढ़े हैं. आउट ऑफ दैट 9 times 7 times इट हैज़ हैपन्ड कि उसके बाद रिसेशन आया है. 9 में से 7 बार ऐसा हुआ है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऐसे फास्ट बढ़ते हैं, 1-1.5 साल में 0 से 5% हो गया, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय रिसेशन. तभी का तब नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर, सो इट विल टेक टाइम, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, बट उसके बाद रिसेशन आता ही है. हर बार ये देखा गया है, एंड हर बार ये भी देखा गया है कि जो बाकी इंडिकेटर्स जैसे इस बार अभी दिखा रहे हैं, रिसेशन आने के लिए कई इंडिकेटर्स देखे जाते हैं कि सबसे पहला है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी है, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है कि नहीं, वो घट रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. फिर एक इंडिकेटर होता है जिसे बोलते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, वो भी 1 साल से लगातार नेगेटिव है. फिर देखा जाता है कि यील्ड कर्व्स जो होते हैं यूएस में, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो भी इन्वर्टेड है, तो वो भी एक नेगेटिव, एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता रहा है कि रिसेशन आ सकता है. सो आउट ऑफ 7-8 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स आर ऑलरेडी सजेस्टिंग कि ग्रोथ अभी कम होने वाली है यूएस में, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो उसका हम देखेंगे कि काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, रिसेशन आएगा. एंड कमिंग टू इंडिया, आई डोंट थिंक इंडिया में इतनी कंसर्न्स हैं. यूएस में हम देख सकते हैं कि येस रिसेशन आ सकता है आने वाले 6 महीनों के बाद, क्योंकि इट इज़ अ लैगिंग थिंग, बट इंडिया इज़ सेफ. आई डोंट थिंक सच थिंग कुड हैपन, एंड दोज आर ट्रैकिंग इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक दे कैन डिटेल में इसको बता सकते हैं. Thank you. So, thanks, Renisha. So, one of the important questions which the market enthusiasts are asking in general, कि COVID का एक time था जब FIIs have started selling big time, and they have sold big time, and that's the period where the Indian domestic individual investors have come into the play, and they have invested significantly in mutual funds and SIPs and all. बट अब का ट्रेंड जो है लास्ट थोड़े महीनों का इज द फैक्ट वेयर द FIIs आर बाइंग सिग्निफिकेंटली. तो क्या चेंज हो गया रवि इन सम टाइम? सो बिकॉज कोविड इज नॉट दैट फार, राइट? 2020-21 इज द टाइम पीरियड वेयर कोविड वाज देयर, दे स्टार्टेड सेलिंग. ऑब्वियसली देयर वाज अ लिटिल फियर इन एवरीबॉडीज माइंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. बट आज की तारीख में ट्रेंड रिवर्सल का क्या कारण लग रहा है आपको? बेसिकली मीन्स के उसमें क्या है कि वो FIs है, जैसे वो इंट्राडे ट्रेडर्स एंड जो इन्वेस्टर में डिफरेंट है. DIs इन्वेस्टर थे और FIs ट्रेडर थे. FIs को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शायद लगा होगा कि इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है. FIs हैव स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम 8,500 निफ्टी जब थी, तब से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया, एंड बाय ग्रेजुअली उन्होंने 2 साल में 2.5 लाख करोड़ इंडियन इक्विटीज़ में एग्जिट किए. जब मार्केट विथ एवरेज था 12,000, उसका एवरेज सेलिंग पॉइंट था 12,000, तो उन्होंने 12 to 13,000 में सेल किया. क्योंकि FIs है ना,
दे हैव वेरी टेक्निकल लिमिटेशंस, जो अभी हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी फेस कर रही है। उसमें क्या है कि एफआईएस जो है वो सारे फंड्स के सर्टेन बाई लॉज होते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर इमर्जिंग बास्केट फॉर अ कंट्री, कि कोई कंट्री का फिस्कल डेफिसिट अगर उसके जीडीपी ग्रोथ से बड़ा है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, अगर किसी का फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा है तो हम नहीं जाएंगे, कोई कंट्री ये है तो हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली वो जो टेक्निकल ट्रिगर जब उसका वहाँ पे आता है ना, तो वो लोग लेवल नहीं देखते, वो सीधा एग्जिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में उसको शू कर देते हैं। अगर उसने लॉ में ऐसा लिखा है कि किसका फिस्कल डेफिसिट 3% से ऊपर गया तो मैं बेचूंगा, तो जिसका भी 3% के कंट्री, जिस कंट्री का बाय एन्युअली 3% के ऊपर गया तो वो बेचेंगे, और उसको इमर्जिंग बास्केट पे अपना वेट भी ऐसा बैलेंस करना होता है। तो वो क्या हुआ कि वो लोग काफ़ी पैसा गोल्ड में गया, साथ में बॉन्ड मार्केट जो यील्ड्स थी वो यील्ड्स बढ़ना चालू हुई थी। अगर आप यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स देखें तो वो मोर देन डबल हो चुकी, मीन्स 100% रिटर्न है उसमें। तो बेसिक उसमें 1% जो इंटरेस्ट रेट था वहाँ से ये रेट पे वो पहुँचे हैं करीबन, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो 6 तक तो ले जाएंगे। तो अगर इतना बड़ा चेंज हो रहा है तो उसको ऐसा परसीव हुआ कि ग्लोबली यही पेस पे इंटरेस्ट रेट में हाइक होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? अगर आज HDFC SBI ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? जिसने लोन लिया है। आज मैंने लोन ही नहीं लिया तो भी मीन्स हमारे इंडिया में क्या सबको मीन्स की बोलने का छूट है, तो सब काफ़ी लोग मीन्स की इतना रिलेशन नहीं होता फिर भी हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो लोन नहीं लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो लोन सबसे ज़्यादा किसने लिया? खुद यूएस ने भी लिया। उसका भी अगर डेट टू जीडीपी रेशियो देखे, या कोई भी चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो देखे, क्योंकि चाइना में गवर्नमेंट डेट ज़्यादा है, प्राइवेट डेट कम है, तो उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यस, कोई भी कंट्री का डेट लेवल ज़्यादा है, तो जिसका जितना डेट लेवल ज़्यादा है उस इकोनॉमी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारा एफआईएस की एक्टिविटीज़, उसके जो पूरे एनालिसिस के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर में शायद इंडिया 1 लेग पीछे था, तो इस हिसाब से उन्होंने सेल किया। सेकंड, यूएस ट्रेजरी में आज जैसे आपने एक राइट क्वेश्चन पूछा था हितेश भाई को कि मुझे बेचना कब है, तो बेचना कब है? जब मुझे रिस्क फ्री रिटर्न, मेरा रिस्क, अगर आज फॉर एग्जांपल इक्विटी इज अ रिस्क, मीन्स उसमें रिस्क है, वोलेटिलिटी का रिस्क है, कल ऊपर नीचे होगा, कोई भी प्राइस 100 रुपीज़ से 101 जाता है या 99 आता है, वो सब में रिस्क है। तो वो रिस्क इक्विटीज़ में है, वोलेटिलिटी का रिस्क है। आगे जाके मीन्स के जैसे कल 20,000 लोग को था कि जैसे ही 20,000 क्रॉस हुआ 22,000 25,000 आएगा, बट सडनली क्या हुआ कि वो 22,000 या 25,000 आने के सामने मार्केट आज 250 पॉइंट नीचे। किसी ने सोचा था कि इन्फोसिस का आइडिया 10% माइनस जाएगा? तो बेसिक क्या है कि मार्केट में ये रिस्क है, कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है सब अच्छा जा रहा है। कोविड आ गया, किसको पता था, तुरंत ही मार्केट गिर गया। बट यस, एफआईएस का ये जो रिस्क फैक्टर है वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जब मुझे रिस्क फ्री रेट, अगर आज मेरे डेट में पैसे पड़े हैं या यूएस बॉन्ड मार्केट में यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने लिए या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड लिए जिसमें काउंटर पार्टी इस गवर्नमेंट, उसमें रिस्क मुझे कम है, तो कम या जीरो रिस्क पे अगर मुझे रिटर्न 7 to 8% मिलता है तो मैं रिस्क लेके क्यों रिटर्न 7 to 8% के एक्सपेक्टेशंस रखूँ? तो ये सबसे बड़ा, मैं एज अ फंड मैनेजर जब मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है कि 20,000 हुई तो अब मीन्स मैंने अगर माल बेच दिया तो क्लाइंट मुझे पकड़ लेंगे कल 21,000 पे आई तो कि आपने क्यों बेचा, मार्केट तो बढ़ा। बट परसेंटेज वाइज गिनो 20 से 21 का जर्नी में 4 to 5% बढ़ा। तो अगर आपको डेट मार्केट में 8% रिटर्न मिलता है तो क्यों आप इक्विटीज में 21,000 का वेट करते हो? तो सर्टेन पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो वो लोग ने अपना डाइवर्सिफाई किया। अभी वो लोग ने लेना क्यों चालू किया? वो लेना इस हिसाब से चालू किया कि दे हैव नॉट एन अपॉर्चुनिटी एनीवेयर, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मिस कर गए गाड़ी, और उन्होंने अपना खुद माल इतना बेचा कि वो लोग को क्या हुआ, इसमें इंडिया के कंपिटिटर्स आप देखो, इंडिया के कंपटीशन में सबसे पहला आता है चाइना। तो चाइना +1 थियरी पता है हमें। चाइना का इंडेक्स जो अभी शंघाई इंडेक्स देखते हो, शंघाई इंडेक्स 2003 में 3000 था, आज भी 3500 है, मीन्स कि चाइना में रिटर्न नहीं है। हांगकांग में जा रहे थे, चाइना ने जैसे ही हांगकांग का कंट्रोल लिया तो उसको ग्लोबली उसका परसिवेंस ऐसा हो गया कि हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तो उसको चाइना में नहीं जाना है।
सेकंड, हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर था ताइवान। ताइवान आपको पता है, चाइना ताइवान का इश्यू अभी थोड़ा डीप हुआ, तो मार्केट मीन्स के एफआईएस के लिए वो रूट क्लोज हुआ। थर्ड हमारे जो कंपटीशन में था वो था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग एंड इन 1 to 2 मीन्स आगे नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 6 महीने में साउथ कोरिया विल मूव फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी साउथ कोरिया विल बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो एमएससीआई की बास्केट में इंडिया का काफ़ी बड़ा वेट बढ़ने वाला है और इससे इंडिया में जो पैसा आएगा वो आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आएगा। तो ये सब जो मार्केट में वो लोग ने मीन्स कि सडनली रियलाइज हुआ मार्च में। प्लस हमारे जो गिफ्ट सिटी है मीन्स कि हमारे सबसे नज़दीक है अहमदाबाद के, बट अभी हम उसका इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ रहे। गिफ्ट सिटी है ना, आप लिख लो 10 साल में इंडिया में अगर फॉरेन फ्लो आता है, फॉरेन इनफ्लो, उसमें मोर देन 10% गिफ्ट सिटी अकेले से इंडिया में एंटर करेगा, इतने पॉलिसी रिलैक्सेशन से। तो एफडीआई का काफ़ी बड़ा फ्लो वहाँ से आ रहा है और आने वाला है, तो उसको भी एफआई की ओर से वो लोग सोच रहे हैं कि अगर इंडिया में इतना बड़ा फ्लो आएगा तो इकोनॉमी एंड मार्केट कहाँ जाएगा। तो इसी हिसाब से जो 12,000 पे 13,000 पे माल बेचा है और तब सबको लग रहा था कि इंडिया विल नॉट परफॉर्म, ये टाइम पे वो लोग इंडिया पे 20,000 पे भी एवरीडे वो लोग बायर है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी क्या हुआ, डीआईएसपी बायर 40 to 50,000 करोड़ रुपीस कम्स एवरी मंथ इन इंडियन मार्केट इन टर्म्स फ्रॉम इंश्योरेंस, फ्रॉम पीएफ, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम एसआईपी, जो भी आप सोच लो वो इतना पैसा डीआईएस को आ रहा है और एफआईएस का भी इतना पैसा आ रहा है। तो आई थिंक इंडियन मार्केट में ये सबसे बड़ा करिश्मा है और वो करिश्मा कोई भी इंडिया का अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता। आप देख रहे हो हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाते थे और अभी जा रहे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क है। उसको कोई प्राइम मिनिस्टर से लगाव नहीं है, उसको लगाव है जो 142 करोड़ का पॉपुलेशन है, जो हमारा लिमिटेशन था, अभी वो कंजम्पशन पे वेरी वो ईगर है। सब मीन्स यंगस्टर बोले थे कि यंगस्टर अभी क्या है कि वो नई सोच लेके आते हैं। हमारी सोच फिर भी काफ़ी टाइम मैं मेरी ट्रेनिंग से या मेरे स्टाफ से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लग जाता है कि हम तो कुछ अभी सोचे भी नहीं थे। वो लोग नए आते हैं, देखते हैं थोड़ा सिस्टम, तीसरे चौथे दिन से तो हमें सजेशन करने लगते, ये करो वो करो, सर ये ठीक नहीं है, यहाँ से दो। काफ़ी टाइम हम रिपोर्ट में कितना टाइम लगाते हैं, तो वो चैट जीपीटी लेके आ जाते हैं, सर 10 मिनट में मैं बना देता हूँ रिपोर्ट। तो बेसिकली ये इंडिया का चेंज है, वो अभी एफआईएस ये चेंज को छोड़ना नहीं चाहते एंड दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिया। मीन्स काफ़ी बड़ा, मीन्स मेरे कम से कम मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 years देयर वुड बी मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्फ्लो इंडियन इक्विटीज़ में एफआईएस की ओर से ही होगा। थैंक यू। So clearly we are bullish on the Indian economy. We are clearly bullish on the Indian equities. तो basically इतना तो पता चला है कि बहुत एक MSCI में वेटेज बढ़ना है और दूसरा ये है दैट बहुत पैसा फॉरेन से इंडिया आ सकता है। सो एक कॉशियस अप्रोच ये है दैट द वर्ल्ड may get into recession because of the fact that what the data suggests that 7 out of 9 times, as Rinisha said, there is a possibility that the recession is imminent. But at the same point of time, India is in its sweet spot where we believe कि बहुत पैसा बाहर से आने वाला है. There is a, when the money is going to be there, the demand is there, but obviously the supply is limited in terms of the stock market if we are talking about. So the moot question which comes over here is the fact that क्या resources, क्या tools मेरे पास हैं, or what are the source of information which I am supposed to have it for the purpose of making an informed decision, right? Irrespective of the fact that market is booming or market may correct, but as of now it is at its all-time high. तो इस economic conditions के अंदर how exactly Amrita do you see the fact that what are the sources of information for me, what tools, resources क्या मैं use करूँ ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को खरीदना है, मेरे को बेचना है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जैसे अभी का जो मार्केट है मतलब एकदम एग्जैक्टली पिक पे पहुंच गया है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ROIs तो वो भी काफ़ी सभी स्टॉक के जो भी प्राइसिंग है काफ़ी ऊपर है. तो जहाँ पे हम पिक पे होते हैं ना तो वहाँ पे हमें कॉन्शियस होना ही पड़ता है क्योंकि एक छोटा सा स्लिप भी आपको गिरा सकता है. नाउ जैसे अभी बात की कि विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो लोग वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देख रहे हैं that is on the multi-year low. मार्केट बूमिंग है बट लोग कंफ्यूज है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें. सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई सजेस्ट कि
कि आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स है, 50% यंगस्टर्स, एंड इवन आई सी दैट देर आर लॉट ऑफ यंग पीपल विद द एज ऑफ 20 to 30 दे आर कमिंग इन टू द मार्केट. पहले ऐसा था, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे, लोग फ़ोन करते थे, फिर डीलर को कॉल करवाते. अभी ज़्यादातर लोग ज़ीरोधा पे करते हैं. एवरी ब्रोकर हैज़ देयर ओन चार्टिंग सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं. तो वो सभी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. हो सकता है कि शायद आपको ये लगे कि ये रैली मेरे से मिस हो गया, लेकिन हमेशा से ये होता है कि एक पिक के बाद एक फॉल तो आता ही है, और वो फॉल कहाँ तक आता है, जहाँ से आगे स्टार्ट हुआ था, राइट. तो कभी भी ये ज़्यादातर रहता है मार्केट में कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस. लॉस कर लिया ना, उससे भी ज़्यादा मतलब ये होता है कि मैंने सेल कर दिया, उसके बाद वो चला गया, राइट. हाउ मेनी पीपल आर अग्री विद दैट? ज़्यादातर लोग हाथ ऊपर नहीं करें, लेकिन सबको होता है. सो दैट फोमो हम कब निकाल पाएंगे? जब हमारे डिसीजन इमोशनल डिसीजंस नहीं होंगे. वी हैव सम क्वांटिटेटिव अप्रोच. सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप रिस्क पे ध्यान दीजिए. If you are coming with 1 lakh rupees on 1st January, and if you are holding that, like doing the swing trading, short term trading या intraday आपने कर लिया, और आप 31st December तक भी वो 1 lakh rupees होल्ड कर रहे हो ना, I consider it as a achievement. How many people consider it as achievement? ठीक है. बैंक में एफडी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है अभी? 7% है. ठीक है. अगर आप उसको इन्फ्लेशन में भी ऐड कर लो, इफ यू आर मेकिंग मोर देन 15% in a year in equity market by doing a conservative investment, then you are like making more money than 95% of investor into the market. But for that you need to be slow down. You need to have an investment plan. कि मैं ऐसा नहीं कि पूरा मेरा मनी एक ही मैंने बास्केट में रख दिया. I would be having a different कुछ शॉर्ट टर्म मेरी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. Those who are like a youngster, if they are ट्रेडिंग इन इक्विटी में अगर इंट्राडे भी कर रहे हो, देन यू शुड हैव सम प्लान, कुछ स्ट्रैटेजीज रखो. ऑप्शंस इज समथिंग विच आई डोंट सजेस्ट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, बट इवन इफ यू आर डूइंग इट, क्योंकि ऑप्शन इट इज अ हेजिंग प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जितना पैसा जाता है उससे स्पीड से मतलब मिलता है ना, उससे ज़्यादा स्पीड से जाता है, बिकॉज दैट इज समथिंग अ हेजिंग प्रोडक्ट. सो अगर आप उसको नेकेड भी कर रहे हो, देन यू शुड हैव सम क्वांटिटेटिव अप्रोच टू ट्रेड दैट ऑप्शंस. इफ यू डोंट हैव, देन डोंट डू इट. देयर इज समथिंग, अदरवाइज you will regret after a year. So have some investment plan, have some risk approach. अगर आप 15% कमाना चाहते हो ना, तो 15% ही लूज करने का अप्रोच रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक ही इन्वेस्टमेंट में 15% लॉस कर दिया. इफ यू आर डूइंग दैट, then it is something like it's a wake up call for all of you and for everyone. So this is something I suggest everyone to be conscious about the, like when the market is on the peak. और ज़्यादातर ऐसा होता है जब विक्स इतना मल्टी-ईयर लो पे आता है, मार्केट को ऊपर से नीचे आने के लिए एक न्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए. चाहिए कि नहीं? कभी ऐसा होता है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो क्या करता है, वो न्यूज़ नहीं देखता है. आई नेवर लुक इनटू द न्यूज़. मुझे उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि आई एम नॉट गुड एट दैट. बट मार्केट के पैटर्न को देख के लगता है कि अभी कुछ न्यूज़ आने वाला है, कुछ आएगा न्यूज़. ठीक है. सो दैट वे, बिकॉज मार्केट इज अ मास साइकोलॉजी एंड मास साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग. सो बी वेरी फोकस्ड and don't be discretionary. So this is something I just want to give a one takeaway. So you need only one strategy to make money into the market. That is the only one thing I can suggest to everyone. Thank you. Thank you, Amrita. So पैसा तो सबको बनाना है, right? And that's where why we all of us are here, including me, to learn and to earn as well. Right. So we
predominantly have had a great discussion with respect to fundamentals. But एक मेरे को technical question है हितेश आपसे, that technical analysis kind of a question is that what future levels of Nifty and Bank Nifty, which is also having a very good weightage on Nifty as well, right? What are the future levels what we are seeing it on overall basis, and what are the supports and resistance, if you can throw some highlight or guidance to all of us? Definitely. What I can say is that I'm more bullish on Bank Nifty. Bank Nifty is trading like anything. मतलब वो जो 46,000 के ऊपर आज भी सस्टेन कर रही है, even though Nifty was down with 250 points. 250 points मतलब almost 1% से ज़्यादा का फॉल आया, लेकिन बैंक निफ्टी में 46,000 का लेवल तक ब्रेक नहीं हुआ. इट शोज दैट बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली गोइंग टू रॉक अगेन. बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी के साथ में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, लाइक आईटी सेक्टर. आज एक आईटी की खराब न्यूज़ आई, रिलायंस 3% टूट गया, तो निफ्टी को वो सब क्या करते हैं, ड्रैग करके नीचे ले आते हैं. बट बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स होते हैं, तो वो बैंक अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा पावरफुल मूव दिखाएगी. और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ. तो ग्रोथ आएगी मतलब पैसा आएगा, और पैसा आएगा मतलब बैंक के पास आएगा. तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये जितने भी बैंक्स हैं यही आपको लोन देंगे, यही आपसे डिपॉजिट लेंगे. तो इनके पैसों में या इनकी अर्निंग्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. बट डेफिनेटली बैंक निफ्टी क्योंकि हैवीली वॉलेटाइल है, तो आप जब भी इसे ट्रेड करें तो आपको बैंक निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, बिकॉज उसके लिए एक दिन ही काफ़ी होता है. निफ्टी में 5 दिन लगेंगे टूटने में, बिकॉज इट इज़ ऑफ मल्टी सेक्टर. लेकिन बैंक निफ्टी अकेला एक बैंकिंग सेक्टर है, उसमें कोई ख़राब ट्रिगर आया तो एक ही दिन में वो सबको हिला के रख देती है, और साथ ही साथ सबको डेफिनेटली इंजॉय भी करवाती है, बिकॉज उसमें पैसा फास्ट मिलता है. दैट इज़ अ हाई वॉलेटाइल थिंग, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड इज़ अ मेच्योर थिंग बट सिल्वर इज़ अ वॉलेटाइल थिंग. यहाँ पर निफ्टी इज़ अ मेच्योर थिंग बट बैंक निफ्टी इज़ अ वॉलेटाइल थिंग. अब जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में मुझे अभी ऐसा लगता है कि ईजिली हमें 47 to 48,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि कोई ख़राब न्यूज़ ना आ जाए. अगर आ भी जाए तो हमें न्यूज़ व्यूज़ ये सब हम टेक्निकल वालों की लैंग्वेज में आता नहीं है. मैं सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखता हूँ और वही देखता हूँ. न्यूज़ में डेफिनेटली कुछ नहीं होता. न्यूज़ एक ट्रिगर है. तो आपको किस पे फोकस करना है, सपोर्ट लेवल्स पे. आपको किस पे फोकस करना है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे. तो बैंक निफ्टी का 43,500 का मेजर सपोर्ट है. अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट बुलिश रहेगा. जिस दिन बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है. साथ ही साथ निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो निफ्टी में नो डाउट अब 19,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया है. जब तक निफ्टी 19,000 के ऊपर है, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली करिए, आप होल्ड करिए. देखो छोटा मोटा करेक्शन आएगा, ये सब तो चलेगा, मार्केट है. जो ऊपर गया है उसे नीचे आना है, और नीचे गया है उसे ऊपर जाना है. तो इन छोटी मोटी चीज़ों से अगर आप अफेक्ट होते तो आज 20,000 का लेवल नहीं देखते. ये निफ्टी आज से 30 साल पहले जब लॉन्च हुई थी तब 1,000 थी, आज 20,000 है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये 30,000 भी होगी, 40,000 भी होगी. सेंसेक्स किसी ने नहीं सोचा था 67,000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा. अब 70,000 उसका मेजर रेजिस्टेंस है. जो मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल, ये कोई लाइन की बात नहीं, कोई टेक्निकल बात नहीं, ये सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल है. 70,000 ब्रेक होगा तो सेंसेक्स में 80,000 की रेंज खुल जाएगी, और वो 10,000 पॉइंट एक मेजर रेवोल्यूशन लाएंगे. दिस इज व्हाट आई फील. थैंक यू. So thank you Hitesh. We are actually running against time, but a quick question मैं सबसे लेना चाहता हूँ. The same question is that what I've learned today out of this conversation is the fact that we are all bullish on India. Significant amount of money is supposed to come in, right? As we just heard, there is a good support which is also there at various different levels in Bank Nifty and all. So what I really gather is that the next decade is of India, and we are on an overall global economy
including our geopolitical relations at this point of time, we are at a perfect spot. Assuming 2024 elections also happens to be the manner in which we all predict, right? We will be at a very, very sweet spot per se. So the same question to all of you put together, but in less than 30 seconds you need to respond because we are running against the time. If the decade, the coming decade is of India, based on your expertise or whatever commodity, product, whatever you deal in, right? How do you see or what should be the next action points? Starting with you, Renisha. A simple rule is कि जो आपकी age हो उससे I mean 100 minus your age should be your diversification in equity. तो अगर आपकी age 40 है तो आपको 60% equities में डालना है and rest in other asset classes. So this is how you should basically, simple rule तो आपको ये follow करना ही चाहिए. तो आप 60% equities में डालिए, ऐसा ही सेट 15-20% गोल्ड में डालिए, बाकी 20% दूसरे asset classes में, debt में या किसी और में डालिए. So 30 seconds, that's it. Thank you. Over to you, Ravi. बेसिकली जैसे मेरा प्रोफाइल है, मैं भी डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है लाइक कोविड के टाइम पे किसी को पता नहीं था कि इतना करेक्शन आएगा, बट एट सेम टाइम गोल्ड मूव्स फ्रॉम 45 to 55. तो अगर आप में गोल्ड है और निफ्टी भी है तो दोनों एट पर आ जाएंगे तो आपका रिस्क बैलेंस हो जाएगा. तो मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. कब कौन सा क्लास आपको प्रॉफिट करवाएगा और कब कौन सा क्लास आपको लॉस करवाएगा वो आगे टाइम एंड फंडामेंटल चेंज हो गए तो आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. और एनालिस्ट भी काफ़ी टाइम मीन्स के टेलीविज़न पे आप देखते हो ये टारगेट है, ये मेरा हॉटस्पॉट, ये हाई कन्विक्शन, इस पे फोकस ना करें. कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करे या कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे, आपका खुद का लर्निंग होना चाहिए. मीन्स के इस इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है थोड़ा बहुत कि मीन्स हम ब्लेम कर देते हैं कि ये टीवी वालों ने बोला था. तो पैसा तो आपका है, टीवी वालों का नहीं है. तो बेसिकली मैं ऑलवेज लोग को रिकमेंड करता हूँ कि किसी में इन्वेस्ट करें तो पहले अगर आपका स्टडी होगा तो आपको कन्विक्शन भी अच्छा होगा. फॉर एग्जांपल XYZ शेयर लिया, 100 से 200 हुआ, बट उसके फंडामेंटल 1000 वाले हैं तो आप रुक सकते हैं, बट वो 200 वाले हैं तो आप एग्जिट भी हो सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है. सेल्फ स्टडी वुड बी बेसिक थिंग और वो करना ही पड़ेगा. मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी निफ्टी 50 के जो टॉप 10 होल्डर्स है, मतलब टॉप 10 कंटेंडर है, उन सभी में आपको मंथली SIP करनी चाहिए. अगर वो आपसे नहीं होती इक्वल अमाउंट पे, अगर वो नहीं होती है देन आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, गो विद द निफ्टी 20 एंड बैंक 20. जो ऐसे आप SIP होती है म्यूचुअल फंड की, 1 से 5 तारीख में जो भी भाव निफ्टी 20 का होगा, आई विल बी इन्वेस्टिंग माई 100 रुपीज़ इन टू इट. So this is something very simple I can suggest for investing for the 10 years. Yes, I would also suggest that diversification is very much required. Gold भी अच्छा रिटर्न देता है, इक्विटी मार्केट भी अच्छा रिटर्न देता है, और सिल्वर could be a very good potential. सिल्वर अभी भी किलो के भाव बिकती है, and what I predict is next 5 years में सिल्वर तोले के भाव बिकेगी, तब उसकी रियल वैल्यूएशन होगी. सो अभी वो अंडर वैल्यूड है. तो अगर आपने सिल्वर में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दिस इज द गुड टाइम टू डू दैट. थैंक यू. Thank you everyone for your patient hearing and all. Any questions from the audience? Yes, please. We'll take only, so just before you start, we'll take only 4 questions, right, if there are any, right, and then because we need to wrap it up, right, I am getting a message from the audience as well, or the AMA as well, that we need to wrap up and give that facility back to them, right? So quickly, yeah. So last year we have seen 2,52,000 crores sold by FIIs, 2,72,000 crores invested by DIIs. This year we are seeing 70,000 plus crores invested by FIIs, but DII is at status quo. They are not the sellers, they are not the investors. Though having 14,000 to 20,000 crores of pumping every month, where are they going? They are going to different asset classes and they are in on cash. Means the average cash level of fund manager is increasing day by day, because I think they are also looking for a valuation is rich. Not it's extremely overvalued, but it's a rich valuation. So they are also waiting for good opportunity or any correction to invest, because 20,000 पे 100% cash में या 100% equity में रहना, if मीन्स के इंडिविजुअल इन्वेस्टर रह सकते हैं बट फंड मैनेजर नहीं रह सकते. तो दे आर, आई थिंक दे आर डाइवर्सिफाइंग. गोल्ड है,
उसमें जा रहा है, काफ़ी पैसा सिल्वर ETF, जो सिल्वर, काफ़ी असेट एवेन्यूज बढ़ रहे हैं। मीन्स के पहले क्या था, इक्विटी गोल्ड, अभी पैसा डेट मार्केट में आप देखो तो डेट मार्केट में भी काफ़ी फंड फ्लो जा रहा है। तो आई थिंक दे आर डाइवर्सिफाइंग द रिस्क मीन्स पोटेंशियल। एंड मैंने जो बोला, मैंने भी मेरे टोटल अभी 30% ये वीक में मैंने भी कर लिए कैश में। तो बेसिक ये प्रॉब्लम है, मीन्स कि अभी वैल्यूएशन एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया में थोड़ी लिमिटेड है, तो इस हिसाब से वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और DIS बहुत स्मार्ट है, मीन्स कि उन्होंने 18,200 के बाद नहीं बाई किया, एंड जो भी बाई किया वो FIs ने किया। बट 7,500 7,500 इंडेक्स से 18,200 तक DIs ने बाई किया। तो कौन स्मार्ट है? मैंने बोला था इन्वेस्टर और ट्रेडर। DIs आर इन्वेस्टर, FIs आर ट्रेडर इन माई परस्पेक्टिव। So just a request before we take any other question, that you all would have received a feedback form, right? It is important for us as an association that you give your best or whatever feedback you have it, so that we will be better able to host the new programs. तो एक बार जो आप सबके पास एक feedback form होगा, request you to kindly fill it up and give it to the concerned person is collecting it. So we'll be better able to facilitate this. Sir, please. 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा और सरकार चेंज होगी तो क्या इम्पैक्ट होगी? So if you can answer that. हाँ, देखिए क्या चेंज होगा, ये वापस वही हमारा प्रेडिक्शन, हमें ज्योतिष नहीं बनना है मार्केट में। डेफिनेटली वोलेटिलिटी आएगी, वोलेटिलिटी ह्यूज आएगी, और ये एक फैक्ट बात है जो आपने कहा, वो एक बट ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कोई भी कारण से अगर बीजेपी नहीं जीत पाई और अलायंस जीत गया तो दैट कुड बी ए नेगेटिव न्यूज़ फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। उससे मार्केट पूरा हिल जाएगा, बिकॉज नए रिफॉर्म्स आएंगे, नए क्राइटेरियाज डिसाइड होंगे। जो पहले वाली चीज़, जो ग्रोथ स्टोरी हमारी चल रही थी, एक बार के लिए नोटबंदी जैसा माहौल हो जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यस Please. Dr. Anisa told that de-dollarization is in high speed, very high speed, right? Correct. As such, it's a good thing that India is investing more in gold. But now when this big boss dollar अब जो बन के बैठा हुआ है, उनकी नींव कब हिलेगी और कैसे हिलेगी, कब तक हिलेगी? ये जो डी-डॉलराइजेशन है, ये 1 साल 2 साल का ट्रेंड नहीं है. इट विल टेक 10-15 ईयर्स मोर टू सेट अ ट्रेंड. जब हम देख रहे हैं जिस तरह से ब्रिक कंट्रीज़ है वो अभी डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही हैं. इंडिया और दुबई ने भी लास्ट वीक एक FTA साइन किया कि वो भी अभी रुपी एंड दिराम में ट्रेड करेंगे. ऐसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो डी-डॉलराइजेशन के थ्रू की तरफ जा रही है. बट इट विल टेक टाइम. आप हिस्ट्री देखेंगे, अगर 300-400 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा डॉलर हैज़ नॉट बीन द किंग. 100 साल पहले 1930 से पहले जब डिप्रेशन आया था, उसके पहले हमने देखा था पाउंड था, सबसे मेजर करेंसी पाउंड हुआ करता था. उसके बाद फिर 100 सालों से हम देख रहे हैं कि डॉलर है. फिर आगे चल के कोई और करेंसी होगा. अगर डॉलर नहीं रहेगा, डी-डॉलराइजेशन के बाद शायद युआन हो सकता है, जो फेवरेबल अभी सबका फेवरेट बन गया है, युआन, चाइनीज़ युआन, तो वो हो सकता है. तो ये 100 सालों में, 150 सालों में ये चेंज होता रहता है और आगे भी रहेगा. अगर 10 साल इंडिया का होगा तो रुपी का एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा अगेंस्ट डॉलर? रुपी का जो डेप्रिसिएशन डॉलर के साथ तो है ही, बट काफ़ी इंडिया का फंडामेंटल्स है वो भी इम्पैक्ट करता है. एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है रुपी का जो ट्रेड है फॉर शॉर्ट टर्म 81 से 83 के बीच में ही रहेगा. आई डोंट थिंक बड़ी बात होगी. आगे क्या फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत ही आगे की बात है, हम कह नहीं सकते आगे क्या होगा. One last question before we wrap it up. Say, sir. Today also the Dow Jones is up. Since last 10 days it is going up and up. How can we say the dollar will be go down? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हम भी यही सोच रहे हैं कि डाउ जोन्स में इतना बाइंग मोमेंटम कैसे. इफ़ यू लुक एट द लास्ट 1 मंथ डेटा, इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है. डाउ जोन्स हैज जस्ट स्टार्टेड द मूवमेंट. तो अभी ये सिनेरियो है कि हमारा इक्विटी मार्केट उसके पीछे जा रहा है. एंड प्रीवियसली देयर वाज अ फियर ऑफ द डेट सीलिंग. सो कोई कंट्री नहीं चाहेगा. फॉर अ लॉन्गर टर्म इट में बी अ स्पॉइल गेम फॉर इकोनॉमी, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो एक जो बुलिश मोमेंटम आ चुका है. और वैसे भी US जो इकोनॉमी ज़्यादातर क्रेडिट पे चलती है,
हमारे यहाँ पे लोग डेबिट पे चलते हैं. सो द वे द पीपल आर पंपिंग मनी इनटू द मार्केट, तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट दिस कैन बी अ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव न्यूज़. बट करंटली द सिनेरियो इज दैट कि जो सिनेरियो जहाँ पे चल रहा है वो उसी सिनेरियो को फॉलो मतलब करना पड़ेगा. इन शॉर्ट द वन थिंग आई वांट टू टेल कि मार्केट जो फ्लो में चल रहा है आप उसी फ्लो में चलिए. आप आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करके चलिए. हो सकता है आप 5% लेना चाहते हो लेकिन मार्केट आपको 15% देना चाहता है. सो डोंट प्रेडिक्ट द लेवल्स, ऑलवेज फॉलो द प्लान एंड ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस. मतलब किसके पीछे, इफ यू वांट टू बी अ गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेस, डोंट थिंक अबाउट व्हाई. Always think about what can I do, how can I do, and how can I make money, and how can I take the opportunity, right? So always curious about the process, not about the reasons. Thank you. एक रीज़न जो आपने बोला लास्ट 10 डेज से जो डाउ ऊपर जा रहा है, बेसिकली रीज़न इज़ द अर्निंग्स. जो यूएस के कॉर्पोरेट अर्निंग चालू हुए लास्ट 10 डेज से, तो काफ़ी फाइनेंशियल कंपनी से उन्होंने काफ़ी अच्छे अर्निंग्स दिए. मार्केट ने ऐसा एस्टिमेट किया था कि यूएस फाइनेंशियल कंपनीज जो है उसमें हैवी लॉस आएगा. उसकी जो कंज्यूमर कंपनी है, ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हुए थे, तो इसमें ज़्यादा गिरावट आई थी. बट कल जो जॉनसन एंड जॉनसन के नंबर आए, उसके पहले जितने जेपी मॉर्गन, ये सिटी ग्रुप, सबके नंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे. तो इस हिसाब से जो अर्निंग में पहले मार्केट डाइजेस्ट करके गया था कि देयर वुड बी अ सीवियर प्रॉब्लम इन यूएस इकोनॉमी, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम, तो वो हुआ नहीं. तो इस हिसाब से नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव. Thank you everyone for coming over here. I would like to especially thank our expert panelists who have taken their time out of their precious time on an overall basis. Market band hai abhi, no doubt, but there are a few technical players for them the market is still open, right? So thank you all for joining us as well, right? Glad to see you. We would try to arrange more sessions like this and we'll send you the invites as well. Thank you for your time. Thanks. Have a nice day ahead.